And my experience with this trip, Triambageshwar trip, what to say? Like, I don't know how those 3 days was gone. No sleep for I had hardly slept for 2 hours in the first place we stayed in the ashram, Yes, Gajanan Maharaj Gajan ashram. Maharaj. Yeah, I had a wonderful deep sleep, which was very soul satisfying sleep. That was one great experience I had. And apart from that, um, when we were just in the line to Saptashringi Mata temple, Yes. uh, I had one experience of getting a slap from Sarita ji. After that, that time I was not having any effect. Like, but today morning, when I was in 3 a.m. meditation, when I started doing the breathing exercise, I felt much easier to do it. Oh, I don't know that was the effect of that because I got a slap in the backside. back, So back. yeah, so I felt I was breathing much easily, which I had little difficulty before. That was one experience, and overall the experience was very good. And during the Havan period was the maximum good experience I experienced. Like, I don't know, after we were up for the whole night doing the Havan, I was feeling very satisfied. Like, I had a something I couldn't explain. And apart from this, I don't have any. I was chanting Mrityunjaya Mahamantra. So it was very satisfying for me. Other than these, I have no other experiences. Um, but when the trip was planned, like I prayed Babaji and Mataji that you have to come with me from Pune to Nasik, and you have to drop from Nasik to Pune. You have to travel with me. Uh, that's what I prayed him. But luckily, or this thing, Sunita, I was traveling with Sunita ji, where Babaji was with me the whole time. That I mean, I couldn't imagine all those stuff. It's all like magic, miracle. I don't know. Okay. Actually, Babaji was. I was traveling with Babaji. He was with me the whole travel. I asked for him Great. that it has happened. Yes, yes. And Great. yeah, one question I have, Sunita ji. Actually, I'm Hmm. not able to see you. I'm seeing myself in both the cameras. I can't see you. I'm here only. Okay, that's okay. I have one question. Yeah, yeah, please. Now, see, I've been meditating for past 4 years. Okay, Hmm. I'm with the ALC for the past 1 year. Hmm. Apart from a few days, around 10, 15 days, I have meditated mostly all the days and stuff. Still now, I get hurt with when my close relatives say anything. The outside people, if they say something, it is not hurting me at all. Are those challenges I am getting? Hmm. Okay. No, close relatives like my mom, dad, spouse, Hmm. everyone, whatever Hmm. they say, I'm getting hurt. Hmm. Okay. Even Yes. I'm. Yes. So those are the challenges, or like it is due to Challenges है uncleared karma. attachments. कर्मा कर्मा भी है विथ लेसन. Okay. कर्मा है ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर निकल रहे हैं ना. तो कुछ चीजें कर्मा के थ्रू भी बाहर निकाली जा रही है, कुछ चीजें अटैचमेंट का
आपने बहुत चीजों को होल्ड करने की कोशिश की है, वो ही छूट रही है आपसे। Okay. Yes. होल्ड है, हाँ, होल्ड की करके रखा है आपने ही, वही लोगों को छुड़वाया जा रहा है आपसे। Okay. वो Okay. होल्डिंग पावर ही खत्म हो जा रही है, आपके हाथ ओपन किए जा रहे हैं जैसे। इसकी वजह से ना आपको कमर में थोड़ा सा गैप है, जहां पे सरिता ने मारा था ना, वो गैप भर गया। हाँ. एंड कमर का नीचे के पार्ट में बहुत सारे सोल थे, आपको ना हेवीनेस नहीं लगेगा पैरों में अभी। Okay. ये कब हुआ है, जब फर्स्ट डे हम लोग सेशन कर रहे थे ना, उस दिन से ही स्टार्ट हो गया था। आप देखो कहीं पे हम ना फोटो निकालते हुए मेरे बाजू में खड़े हो, ज्यादा कोई लोग नहीं थे, आप और मैं ही थे, तभी से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था सोल का निकलना। और वो मारने के बाद तो बीच में थोड़ा सा गैप स्टार्ट हो गया था, वो भर गया है, इसलिए आप सांस को ठीक से ले पा रहे हो। गर्दन में थोड़ा सा है, वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वेट है, वेट था, बहुत वेट था आपको भी। एंसेस्ट्रल पेन है, एंसेस्ट्रल बहुत सारी चीजों की वजह से आपको कान में भी इशू थे, ऐसा दिख रहा है। कान, थ्रोट चक्र, वो सब धीरे 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 रिलीज हो रहा है। आपको ना थोड़ा सा आने वाले दिनों में नाक बहना स्टार्ट हो सकता है, आईब्रोज के थ्रू कुछ चीजें रिलीज हो रही है, ये भी एंसेस्ट्रल ही है। हम्म No, even और आप after today also, yeah, tell me. या प्लीज कंप्लीट करना। Actually, today also, हम्म today whenever I speak to my parents, I get hurt. I don't react to them or talk back anything to them. No reaction. I just keep quiet. I don't say anything you said. I don't talk back to anyone. I'm very silent. And but it is hurting me a lot, and it is making me cry sometimes. Only to parents and all. So what I have to change? I mean, what I need to change? एक्चुअली ना आपके फादर जो है पास्ट लाइफ से आपके साथ है, साथ है वो मदर एंड फादर। ओके, अपने उनको मारा हुआ है, वही पेन आपके गले में है, वो आपको दिखा रहे सामने आके, वही पेन आपके गले में बांध के लेके आए हो पेन को, वही चीज ऊपर आ रही है। उनको माफी मांगना है, हाँ, उनको माफी मांगना स्टार्ट करो। कान में दर्द होगा, कान में जो है दर्द होने वाला है, जिससे ना एनिमल्स है, एनिमल्स को आप बहुत मारते थे, यही चीजें आप सामने आ रही है, हर्ट के रूप में सामने आ रही है। एक है कर्मा, दूसरा है माफी मांगना। एनिमल्स के प्रति आपको बहुत प्यार से रहना है, एनिमल्स के प्रति बहुत प्यार से। प्यार डायरेक्ट नहीं होता है, माफी मांगना, आप उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, उसकी वजह से ना आपको ये समझ में आएगा कि एनिमल्स को कैसे कनेक्ट होना है। गाय के पीठ के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाज करना स्टार्ट करो, कुत्तों को खाना, बिस्किट, जो भी आप देना चाहते हो वो देना स्टार्ट करो। स्क्वेरल को छोटा छोटा कुछ खाना देना, बर्ड्स को खाना देना, इससे ना आपके कर्म फास्ट रिलीज होंगे। पेन पेन कोई आ रहा है, इसका मतलब है हमने कुछ किया हुआ है, वो रिलीज होगा। I didn't hear it properly. पेन आ रहा है, कोई बात किया तो पेन आ रहा है, वापस हिट हो रहा है, इसका मतलब है हमने कोई चीज करी हुई है जिसको रिपेयर करना है। ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करना है, एनिमल्स के साथ बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार से। जैसे गौशाला में गए ना, उसको टच करना है, गो को टच करना है। आपके मम्मी पापा, आपको ऐसा लगेगा कि मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, अचानक से ऐसा लगने लगेगा। एनिमल्स के साथ बिहेवियर चेंज करो, वो चेंज हो जाएंगे। And after connecting with ALC, I have become so silent. Like as Babaji says, and Patriji also was saying, don't open your mouth unnecessarily. That is what I am following. So I don't talk unnecessarily at all.
I just keep silent in the house also with all the house members also. I don't talk unnecessarily. I do my work. I just chant and I keep doing that. But people, my close relatives, I think, especially my parents, right? They don't. They feel that I have stopped talking to them because I am like that with everyone. So is this correct or when I start talking too much, na, I feel I am getting breathless. That's the thing. I cannot talk Hmm. for 5 minutes and all. I cannot talk. So what I'm doing is correct or because नहीं all the अब gurus are saying that. हाँ, गुरु गुरु जो बोल रहे हैं वो 100% है, करना ही है। आपके कर्मा को ठीक करने का वही एक रास्ता है कि साइलेंस में रहना है। पर मम्मी पापा के साथ बात करना ऐसा नहीं है, मम्मी पापा की बात करना है। अगर वो कुछ बात कर रहे हैं तो हाँ, उनको रिस्पॉन्स देना है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे बात करनी है, रिस्पॉन्स देना है। हाँ पापा आप ठीक है क्या? और वो बोल रहे हैं हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सुनना है। साइलेंस में रहना इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के साथ भी बात ना करो या बच्चों के साथ बात कैसे करना है, ब्रेन को साइलेंस रखना है। बात करनी भी पड़े, ब्रेन को साइलेंस में रखना है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया वो मेरे लिए नहीं था, आपको ना इंटेंगल नहीं होना है उसके साथ। ये सारी चीजें अभी आपका एनर्जी ना पूरा कंप्लीट भरा हुआ नहीं है तो कंफ्यूजन हो रहा है। बॉडी भर रहा है एनर्जी से, जैसे समझो 40% तक आपका बॉडी एनर्जी से भरा हुआ है। अभी भी बाकी है, कहीं कहीं जगहों पर पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं पे फंगस है, कहीं कहीं पे कुछ कफ रह गया है। ये चीजें जो इससे ही निकल जाएगी ना, मेडिटेशन से ही होता है, आपको हर्ट नहीं होगा। पापा के साथ अगर पापा बात कर रहे हैं तो मुझे शांत बैठना है कि उनको रिस्पॉन्स करना है, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको समझ में आएगा कि पापा के साथ किस तरह से बात करनी है। ये ना आपका एनर्जी से बॉडी भर रहा है, पूरा नहीं भरा है, भर रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा वो भी। आपको साइलेंस में रहना है, इसका मतलब अभी देखो मैं कितनी बात करती हूँ, पूरा ट्रिप में देखा होगा मैं सबसे ज्यादा बात कर रही हूँ। तो ये साइलेंस था कि नहीं था? फिर साइलेंस कहा ना, ब्रेन को साइलेंट करना है। कभी हमको बात करनी भी पड़े तो भी वो इंटेंगल नहीं होना है। मैंने प्रिया जी से बात किया, वो बोल रही थी कि पापा से बात करो कि नहीं, और मैं सो रही हूँ उसको रिपीट करते जा रहा हूँ। ये यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, ये स्टॉप होना है। जो बीच में हम लोग इंटेंगल होकर अकेले अकेले बात करते हैं, इसको भी स्टॉप कर सकते हैं। सिर्फ मुंह को बंद रखा और ब्रेन में बात कर रहे, वो साइलेंस नहीं है। ब्रेन को बंद करके मुंह ओपन रख सकते हैं, पर वो बोल के नहीं होता है, उसको ना एनर्जी अपने आप सिखाती है, थोड़ा धीरे धीरे होता है। मम्मी पापा से बात कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि 4-5-10 घंटे करना है, पर पापा कुछ बोल रहे तो रिस्पॉन्स देना है कि हाँ पापा ऐसे नहीं ऐसा था। बात करनी है ना। झगड़ा हो रहा है तो अच्छा पापा हाँ क्या ठीक है। ऐसे झगड़ा कैसे हो सकता है? पेरेंट्स के साथ क्यों झगड़ा होता है? ऐसा नहीं होना है, पता है क्या? ऐसे नहीं होना है। उनको बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। स्पिरिचुअलिटी में आके अगर आपको खुद की ग्रोथ क्रिएट होने देनी है तो पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहो, आपके ये दोनों बॉडीज ठीक होंगे अपने आप ही। पापा के साथ मम्मी के साथ कुछ इश्यू है, बॉडी में इश्यू है, स्पिरिचुअलिटी में आपका ग्रोथ धीरे धीरे होता है। आपने जैसे ही मम्मी पापा को समझ लिया, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उनको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। ग्रेटिट्यूड देना है कि आपकी वजह से मैं आज बाबा जी से मिली, आपकी वजह से स्वामी समर्थ से मिली, गुरु मावली से मिली, मेडिटेशन कर रही हूँ। कुछ भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, पेरेंट्स को ही ग्रेटिट्यूड देना है। आपको ये ध्यान में आएगा कि आपको ध्यान में आएगा कि चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। जैसे आपने माँ बाप को एक्सेप्ट किया ना, आपको ये ध्यान में आएगा कि मेरे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है ज्यादा। वो फाइनेंस में भी ग्रोथ करते हैं एंड एजुकेशन में भी ग्रोथ करते हैं। पेरेंट्स के साथ कभी भी हमको बहुत प्यार से रहना है। वो चाहे मार भी रहे होंगे ना, थैंक यू, वो लोग नहीं करते ऐसे, पर कर भी रहे तो ऐसे ही करना है, थैंक यू। पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार से उनको ठीक
से आप बिहेव कर रहे हो, मतलब आपने खुद के बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया। 50% वहीं पे काम हो जाता है। पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इन लॉज को बहुत प्यार से हमको हमको आ, हमको ना पेन ही नहीं क्रिएट करना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी कितनी सुंदर है। ठीक है, कुछ भी हाँ आपको फील हो रहा है ना, ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। इसकी वजह से ना एक ना जैसे 12 चक्रा तक एनर्जी जाती है ना, 12 चक्रा में जाने के बाद आपको पेरेंट्स के प्रति ज्यादा भाव आने लगते हैं, मतलब रियल भाव आने लगते हैं। अभी कैसे सिर्फ सुनना है, अभी क्या हो रहा है कि हमको कुछ करने की कोशिश करनी है, वो अपने आप होने लगता है। फिर पहली स्टेज पे ना ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। इस स्टेज में हमको कभी कभी ऐसे ही करना पड़ता है, वो अंदर से नहीं आता है, पर बस बोला है किसी ने तो करना है। ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। समझो मम्मी के पास जा रहे, पापा के पास जा रहे, बहुत अच्छी सी साड़ी लेके, पापा के लिए कुछ तो छोटा सा गिफ्ट लेके। उनको गिफ्ट की जरूरत नहीं है, पर लेके जाना है। गिफ्ट का ना किसी का जरूरत नहीं रहता है, आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ना वो लोग खुश हो जाते हैं, उनको खुश करना आपके लाइफ का मेन ड्यूटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इस तरह से उनको ट्रीट करना है, लेके ही जाना है। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास बहुत साड़ी है, मत लेके आओ, आप लोगों का काम है लेके जाओ, लेके जाना, चूड़ियां लेके जाना, मम्मी आपको ये अच्छा लगेगा, हाँ लेके जाओ। उनको भी हमारे किसी चीज को देने से ना देने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनको ऐसे लगता है कि नहीं, पर ना लेके जाना है, जहां मुझको लेके जाना है उनको। वही एक ग्रेटिट्यूड का ये एक जैसे रास्ता है हमारे लिए, ऐसा समझो। बात करनी है, कोई त्योहार आए तो बात करनी है कि मम्मी आप कैसे हो, खाना खाया क्या, क्या कैसे लग रहा है, पैर ठीक है क्या, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, ऑयल लगाया करो, ऐसा करो वैसा करो। उनको ना जिंदा रहने की चाहने लगती है कि जिंदा रहना है मुझे, क्यों, मेरी बेटी बहुत अच्छी, वरना उनके पास क्या है जीने के लिए। देखो हमारे पूरा लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहे थे, उसके पीछे लगे रहते हैं। पेरेंट्स जिन्होंने इतना बच्चों को बड़ा किया वो बात करने के लिए रेडी नहीं, तो उनके लिए तो कितना मुश्किल है ना सब कुछ। उनको समझना है, उनको समझना है, वो हमारा आने वाला कल है, इसको याद रखो, इसको याद रखो। और पता है आप एकदम कात्यायनी के रूप में दिखते हो मुझे, और माँ कभी भी दूसरी माँ को तकलीफ नहीं दे सकती, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। माँ जो है ना, जो कात्यायनी है, वो दूसरी माँ को तकलीफ नहीं दे सकती, वो तो डिवाइन है ना, वो उसने सबसे ज्यादा माँ को ही समझा है। मम्मी के साथ, पापा के साथ बहुत प्यार से रहना है, बाद में रोके के कुछ फायदा नहीं, अभी बहुत प्यार से रहना है। उनको एक दिन भी ऐसा सुकून फील हो कि प्रिया है जो मेरी बेटी है ना, उसकी वजह से हम लोग जिंदा है। आपने तो पूरा लाइफ चेंज, आप ऐसा समझो ना कि आपने इस लाइफ का जो इस जन्म का जो भी कुछ कर्जा है, ऋण रहता है ना, इंसिस्टर का भी ऋण रहता है, वो उतार दिया समझो। अगर मम्मी पापा ने एक दिन भी बोला ना अंदर से कि प्रिया की वजह से मैं जिंदा हूँ, बस मिल गया सब कुछ, आपने पार कर लिया सब कुछ, ऐसा समझो। इतना प्यार से रहना रे, कभी भी एंसेस्टर्स को, कुल देवी को, गुरुओं को, माँ बाप को तंग नहीं करना है, उनको बहुत प्यार से रखना है। बस हमारा काम ही वही है कि पेरेंट्स के साथ ठीक रहो, गुरुओं के साथ ठीक रहो। आपको रास्ते, वही लोग रास्ते दिखाते, कुल देवी के साथ जाना है, उनको बोलना है कि मेरे साथ आ जाओ, उनको बोलना है कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बोलना है कि आ जाओ, कहीं पे जा रहे हैं बच्चे का कुछ एडमिशन करना है, उनको बोलना है, ऐसे करना है। एक माँ के साथ और दूसरा कुल देवी के साथ, डिवाइन मदर के साथ हमेशा कनेक्शन रखना है, प्यार से रहना है, प्यार से रहना है। माँ बाप के साथ कभी भी एट एनी कॉस्ट उन्होंने जमीन से बेदखल कर दिया, आपके नाम पे कुछ नहीं रखा हुआ है, आपको ठीक से नहीं रखा। हाँ पहले बहुत सारी चीजें हुई होंगी, पर आपको अब पेन क्रिएट नहीं करना है, आपको अलाउड ही नहीं है। माँ बाप को हम लोग तकलीफ नहीं दे सकते,
माँ बाप को हम लोग किसी भी हालत में तकलीफ नहीं दे सकते। ठीक है, और Yes, कुछ ma'am. पूछना है क्या? That's it, ma'am. Yeah. Thank you very much. यस Thank you for everything. यस, लव यू, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने डिवाइन फीलिंग हो रही थी ना कि सब इतने प्यारे हैं। थैंक यू सो थैंक मच, यू लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।